Morning students, we have came to the fourth chapter of your civics book, that is key elements of a democratic government. एक लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार की राइट्स मिले होते हैं, किस किस प्रकार की आज़ादी होती हैं, what are the main features of a democratic government we have to learn. In the previous chapter we have learned that there are various types of government. There was a comparison also between monarchy and democracy and so on and so forth. And what is a government? So we have already learned what is a government. Now let us learn what is a democratic government, or what are the features of a democratic government. This is the first part of the chapter, key elements of a democratic government. So here there is a story of South Africa. So South Africa is a country of the African continent, and it is the southernmost country of the African continent, as you can see on the map. So it had a long problem of discrimination against the blacks, that was also known as apartheid. So South Africa had a long history of discrimination against the blacks by the whites. So here is one of the stories, is what happening in South Africa. You can consult your book, or you can have your book open so that you can read the story along with me. The story says South Africa is a country that has people of several races, and the blacks and other races are being discriminated by the whites. So this is a story of a girl, Maya Naidoo, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. So Hector Peterson was the name of the boy whose newspaper articles and the story she found. Next is what happened. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. तो क्या हो रहा है, हेक्टर जो है उसको पुलिस ने गोली मार दी थी. अब माया पूछ रही है कि हेक्टर को क्यों गोली मारी. तब उसकी माँ क्या जवाब दे रही है. What her mother is replying. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. ये apartheid क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जिसमें ब्लैक्स के अगेंस्ट भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था. So apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into whites, blacks, Indian and colored races. तो चार प्रकार के विभाजन उन्होंने किए हुए थे समाज में लोगों के, according to color of skin, that is white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. तो उनको यानी कि blacks को और जो colored थे उनको whites के साथ रहने से मना किया था, सेम फैसिलिटीज़ यूज़ करने से मना किया था, और इसी प्रकार के और कई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते थे. उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वाइट्स के साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, और जब वाइट्स आते थे वहाँ पे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ब्लैक्स को उनके लिए सीट भी खाली करनी होती थी. तो इसी प्रकार के बहुत सारी टाइप के एक्सप्लॉयटेशन जिसमें समान अधिकार या समानता, इक्वालिटी ना दी गई हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही थी. सो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separated and so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. तो एम्बुलेंस में भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्पिटल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था. जो हॉस्पिटल्स ब्लैक्स के लिए थे वहाँ, और जो एम्बुलेंसेज ब्लैक्स के लिए थी वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जबकि जो एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल्स वाइट के लिए थे वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं उन्होंने दे रखी थी. सो देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस. जो ट्रेन्स और बसेस थी वो भी अलग अलग थी, वाइट्स की अलग ट्रेन और ब्लैक्स की अलग ट्रेन और बसेस. इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट. द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. अलग अलग बस स्टॉप, यानी कि जितनी भी चीज़ें, पब्लिक फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़, transportation facilities, all these facilities were separate, and the white ones were well equipped and the facilities meant for the blacks were
not well equipped or not in very good condition. Now what is happening? Non-whites were not allowed to vote. जो blacks थे उनको वोट करने का अधिकार भी नहीं था. तो एक तो सामाजिक शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, फैसिलिटीज यूज नहीं करने दी जा रही थी. तीसरा क्या हो रहा है? उनको वोट करने का अधिकार नहीं था ब्लैक्स को. सो द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उग सकते थे वो वाइट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, और जो खराब ज़मीन थी वो किसको दे दी गई? ब्लैक्स को. तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देयरफॉर वी कैन से दैट the blacks and colored ones are not equal to the whites. So now what is happening? One black township was Southwestern Township, Soweto. Hector Peterson lived there, and he and his classmates joined the protest against learning the African language in school. This was the language that the whites spoke. So Afrikaans was the language the whites spoke, and the whites wanted that the blacks should also speak the same language or learn the same language. तो इस लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा था, थोपा जा रहा था ब्लैक्स पे, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया बहुत सारे बच्चों में. उन बच्चों में से एक कौन था? हेक्टर पीटरसन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ुलू. तो वो अपनी भाषा ज़ुलू को पढ़ना चाहते थे, ना कि अफ्रीकान को. The South African police beat up the protesters mercilessly. निर्दयता से उनको पीटा गया बच्चों को. And shot at the crowd. और भीड़ पर गोली चलाई. इसी हिंसा में, इसी गोलीबारी में एक बुलेट किसको लगी? हेक्टर को. कब? 16 जून 1976. Now what is happening? The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid. तो यहाँ पे अब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, हुज नेम इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड हुज वेल नोन लीडर वाज नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला उसके लीडर थे जिन्होंने अपार्थीड, यानी कि वो नीति जिसमें ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अ पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ विच ब्लैक्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड वाज नोन एज अपार्थीड. ही फॉट अगेंस्ट सच अ पॉलिसी, एंड फाइनली इन 1994 ही सक्सीडेड. अंत में 1994 में वो सक्सेसफुल हुए डेमोक्रेसी लाने में साउथ अफ्रीका में. तो ये थी कहानी माया नायडू की और हेक्टर की, जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि अपार्थीड एक ऐसी पॉलिसी जो अपना रहे थे वाइट्स, जिसमें ब्लैक्स और अदर कलर्ड स्किन जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एसेट्रा. अब क्या हो रहा है? क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन. सो एनसीईआरटी की बुक में आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट. तो हेक्टर और उसके क्लासमेट किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट द इम्पोजिशन, द फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेज. अफ्रीकान लैंग्वेज उनको पढ़ने के लिए जबरदस्ती बोला जा रहा था. इंस्टेड दे वांटेड टू लर्न ज़ुलू. तो इस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. 5 कौन कौन से तरीकों से जो नॉन वाइट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था. सो दे हैड डिफरेंट पब्लिक फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बसेस, ट्रेन्स, हॉस्पिटल्स एसेट्रा. ठीक है. और क्या पढ़ा हमने? उनको वोट करने का अधिकार नहीं था. दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट. तीसरा क्या था? दे वर नॉट अलाउड टू लिव नियर द एरियाज. उन एरियाज के आसपास नहीं रह सकते थे जहाँ पर वाइट्स रहते हैं, बाकी लोग वहाँ पर नहीं रह सकते थे. उसके अलावा फोर्सफुली दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न थिंग्स विच द वाइट्स वांटेड, एंड दे वर नॉट अलाउड टू लर्न थिंग्स विच दे वांटेड. व्हाट एल्स? उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बनाने के लिए भी अलाउड नहीं कर रखा था उन्होंने. और उनके साथ समय समय पर हिंसा, देयर वॉज वायलेंस अगेंस्ट देम in the name of color of skin was there against them. तो इसी बहुत सारे प्रकार की और भी डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हो रहा था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी इक्वली ट्रीटेड? वाई? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों का इक्वल ट्रीटमेंट या सभी लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो भी क्यों?
यानी कि सबसे पहले आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं इक्वालिटी मिलनी चाहिए या नहीं और क्यों मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी शुड बी गिवन टू ऑल एंड एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बिकॉज if equality will be not there, there will be protests, there will be violence, there will be killing of people, loss and damage to property, and ultimately a loss to the country, and it also do not maintain dignity or respect of the citizens for themselves and for each other. So equality बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें, शांति से रह सकें, कॉपरेशन से, कम्युनल हार्मनी से रह सकें और देश का विकास हो। If equality will not be there, it will be a big loss to the economic, social and political development of a nation, of a country. मूविंग ऑन, तो अब जान लेते हैं कुछ की एलिमेंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या हैं, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स क्या हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। आपकी बुक में 3 मेजर क्वालिटीज़ दी हुई हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं डेमोक्रेसी के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी, सेकेंड इज resolving conflicts, second one is resolving conflicts, so you have to resolve conflicts in a democracy, otherwise there will be a lot of problems. Another is equality and justice. Equality and justice are also quite important in a democracy. Without equality and justice, you will not be able to satisfy or give a feeling of oneness or unity to the people. We will discuss all these 3 elements in detail, but today we will only discuss the first element, that is participation. सहयोग, योगदान कैसे हम कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी में किस किस तरीके से भाग ले सकते हैं, हाउ इन व्हाट वेज वी कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी. लेट्स लुक. There are various means of participation such as through elections. हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम मतलब वो सभी लोग जो वोट देने के काबिल हैं, all adults above the age of 18 years in India. By using universal adult franchise, we elect a government for 5 years. Generally, we elect a government in a country, the state government or the central government or the local government, for a term of 5 years. Second is through taking interest in work of the government and criticizing it whenever required. सरकार के कामों में इंटरेस्ट लेके वो क्या काम कर रही है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, या और अपने जो प्रतिनिधि हैं हमारे जिनको हमने चुना है उनके द्वारा ये जान के कि सरकार क्या कर रही है, और जहाँ पे वो अच्छा काम नहीं कर रही है वहाँ पे उसकी आलोचना करके, ताकि वो अच्छा काम करने का उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके. Third way through which we can participate in a democracy is through organizing various means of protest. अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट आंदोलन हम चला सकते हैं अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट से. तो आंदोलन कैसे कैसे हम चला सकते हैं? So we can organize rallies, we can organize strikes, we can have signature campaigns, we can write in newspapers, magazine, etc. We can also take part in news debates और एनी अदर डिबेट्स ऑन डिफरेंट चैनल्स. सो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वोटिंग करना यानी कि पार्टिसिपेशन करना डेमोक्रेसी में, स्ट्राइक करना, रैलीज़ करना, सिग्नेचर कैंपेन्स करना, ठीक है, हड़ताल करना, ये सारे तरीके से, और आर्टिकल्स छापना न्यूज़पेपर में, हम किसी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि वो हमारी भलाई के कार्य करें. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट of key elements of democracy, that is participation. So we will again revise it. We can participate in 3 different ways. First is through taking part in elections, second is knowing the work of government and criticizing it, and third is by organizing various types of protest by various means if we are not satisfied with the work of the government. Moving on to the last part, that is assignment. I have some questions for you. Question number 1, what are the different ways of participation in a democracy? Question number 2, what are the key elements of a democracy? Question number 3, name the political party of South Africa who protested against discrimination against the blacks. Thank you and have a nice day.